सामने आ जाओ सामने। माता की, भारत माता की, भारत माता की. May I now request our respected Principal Sir to address us on the occasion of 74th Independence Day celebration. Principal Sir. May I request other people to sit maintaining social distancing. The chairs are placed at the proper places, keeping social distancing in mind. Please take your seats. May I request now Principal Sir to address us. Principal Sir, Sri Nityanand Pradhan, Professor Nityanand Pradhan. Esteemed colleagues of Regional Institute of Education Bhopal, DM School Bhopal, Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education, former colleagues, if any, alumni of RI and BMS, if any, students of RI and BMS, if any, family members of the staff of RI, BMS and PSCCIB, ladies and gentlemen, at the outset, I wish you a very happy Independence Day, 74th Happy Independence Day. And it is perhaps for the first time in the history of Regional Institute of Education, Bhopal, and for that matter, in India, that educational institutions are celebrating Independence Day without students and without much gathering, and maintaining a different set of protocols like social distancing, use of sanitizers, use of masks and so on. So, in the today we are here, as you all know, to remember the contribution, the sacrifice of the freedom fighters, and we have got the freedom after 90 years, near about a century of our struggle, and many have sacrificed, and many leaders, including Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Mangal Pandey, B.R. Ambedkar, and so on. So today we are here to give a tribute to all of them.
And during our freedom movement, our struggle, we faced a lots of challenges. And also, we had a lots of opportunities. The challenges like subjugation in the hands of Britishers, and also torture. So many have sacrificed whose name is not known. We only know, or only the names of few leaders are there. And we have also learned many lessons during that period, in the process of struggle movement. The lessons like we become united, and we develop a sense of patriotism, and we learn to be self-reliant, particularly in the matter of governance. The onus of governing ourselves was taken up by all of us, by our country. And similarly, a similar situation has happened now, that is COVID pandemic situation. This situation also is a war-like situation, and it is after perhaps struggle movement, it is a situation where we have lots of challenges the country is facing, so also lots of opportunities that has come. So if we talk of the challenges, you know, the challenges related to health, economy and education, and almost all citizens of India are the sufferers, and the most sufferers are the marginalized sections. As you know, we have about 80% of the workers, they are working in unorganized sector or informal sectors. They are worst sufferers. They are not getting their for any finance for their subsistence. And also, we have also learned many lessons. So what is the lessons that we have learned during this time? We have learned to be self-reliant. We have brought out many innovations in all the fields. In the field of health facilities has increased, and we have brought lots of innovations in the field of education, including online education. And also our students and all of us have learned to be self-reliant. You see, although pandemic or the COVID is increasing, the number of patients are increasing day by day, but still now everything has become almost normal, in the sense now we are to live with this situation, and we have to take our own responsibility. So it is an opportunity, and as well as the challenges. And since independence, this day we used to pay our tribute to our freedom fighters. But now, in this situation, we are going to also pay our tribute to the Corona warriors. The Corona warriors, a new terminology, a new kind of fighters that has come to us and that has become very visible. The services of them has become very visible. They constitute doctors, nurses, and many police personnel, and also our safai wale or security, those who are with us. And they have during this time, many of us stayed at home, but they continued their services. They continued their services, doctors, nurses, police personnel, security personnel, and the safai personnel. So, during the process, many of them have also lost their life, sacrificed their life. So it is also time to
pay our tribute to those who have sacrificed their life during this COVID situation for providing service to the masses. And with COVID pandemic also, the country is facing lots of challenges. In Indo-China border, there is a war-like situation and many have sacrificed their life and because of intrusion of enemies that has created a situation, and we are surrounded by enemies. India is surrounded by enemies. And the name, I don't want to say the names of the enemies. And also some friends, those who are our friends since long, they have also become enemies during this period. So this is a great challenge that the country is facing. And so we should also pay our tribute to those who have sacrificed their life in the Indo-China border, and also very flood and cyclone that has also affected many parts of the country. India is a diverse country with diverse climatic situation, and flood has also affected some parts of the country during this period. And the country, our government is facing those challenges very effectively. And we are trying to come out from this situation. Since it is a country with vast population, there must be vast problems. When population is more, when you work more, then you commit mistakes more. When your population is more, then problems also will be more. That is obvious. But despite this, during this time, our government, with the leadership of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he has brought two broad things. He has done many things, but I will be telling only two spectacular achievements of the government with his leadership. That is one, Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat is a economic package with 20 lakh crore money, 20 lakh crore rupees, which is equivalent to 10% of our GDP. The largest economic package that India has seen ever for the resurgence of Indian economy. So this is a great package that has been brought out, and because this is our realization, our government, our country has realized that we have to be self-reliant now, and for this largest package has been declared to benefit 1.3 billion population. Not only the workers, but also in education sector, health sector, and mostly for the youth of the country, youth and students. Because now, since last 4 months, now our schools have not opened, and in near future, we can see when our schools and colleges are going to open. And I got a news only a few days back that America, USA, they started opening schools, and 97,000 students were affected by corona. So this is also should be taken into account while the opening of schools. So we cannot say now what time this will open. And our Prime Minister has during this at the initial time, he declared one thing, that Jaan hai to Jahan hai. So first we should give importance to life, because corona situation or pandemic is a question of life, and the country very strong in economy, in the field of education, and in all parameters like France, like US, like China. They lost many lives, and learning from that,
as compared to that, our government, although having density of population, has been able to control, and this is the and later also he declared that जान है तो जहान है, जान भी है जहान है, जान है जहान भी है. So this is the greatest contribution or challenge, or you can say addressing to the challenge by our government to face the situation. And another thing that is a concern to us is the declaration of new national education policy, that is 2020, after 34 years of exercise, and with a view to bring transformational change in the system of education. In the meantime, when 86 policy was there, situation was totally different. Now the situation is totally different. That in the meantime we have entered into 21st century, and lots of skills and competencies are required in this century, and with a broad vision, with 6 years of exercise with which we are also associated, this policy has been declared. You might have heard many changes that have occurred from media, from television, from radio, and from newspaper also. The broad vision being, it is very emphatically said that our education should be rooted in Indian ethos, rooted in Indian ethos. We have a very rich tradition of our education, rich tradition of education. 1,000 years back, parallel to Greek civilization, we have a rich tradition of education of Gurukul system, and also many knowledge in many fields, knowledge of India in many fields, and that is the vision that this knowledge to be brought into our system of education, to our curriculum. And second vision is to create India a knowledge society. What is a knowledge society or learning society? A learning society where everybody has a chance to learn, whether she is a housewife, whether she is small children, or people working in informal sectors. So education for all, सभी के लिए शिक्षा, ये भी एक broad vision है. And third is to respect human rights and constitutional values. So it has emphatically made a vision that our constitutional values should be respected and should be integrated in curriculum, including teacher education curriculum. In all teacher education curriculum, the constitutional values should be integrated. And fourth one is to attain sustainable development, Dharaniya Vikas, sustainable development, and global citizenship education we talk about. That India believes in Vasudhaiva Kutumbakam. So our education system also should respect that. World is a family. We respect this view, and that should be reflected in our curriculum. So now at the end I will be telling some of the transformational changes that have occurred in the system of education, or that is going to happen in a few years, because it will take time. A very transformational change in the curricular and pedagogical structure. It means we had 10 plus 2 system of education consisting of 12 years of school education. Now it is 15 years of school education. 5 plus 3 plus 3 plus 4. Why 15 years, 3 years more? Because our early childhood education or preschool education has become integral part of school education. अभी स्कूल एजुकेशन में प्री स्कूल को मिला दिया गया, तो आगे स्कूल एजुकेशन 15 साल हो गया, ये भी आएगा कि
ये एक फंडामेंटल राइट भी हो जाएगा। सो एंड देन इन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑल्सो। असेसमेंट के बारे में बहुत अच्छा चीज बताया गया है इसमें। 360 डिग्री असेसमेंट। व्हाट इज 360 डिग्री असेसमेंट? बच्चों को 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। कौन मूल्यांकन करेगा? पहले टीचर मूल्यांकन कर रहा था, अभी वो अपने आप को मूल्यांकन करेगा, उनका साथियों मूल्यांकन करेंगे, उनका टीचर भी मूल्यांकन करेंगे। मतलब हम जैसे बोलते हैं 24/7 मूल्यांकन होगा। तो ये एक नया है। और जो एक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को मिलता है, जब बच्चे स्कूल को प्रोग्रेस कार्ड देते हैं, इसमें क्या रहता है? आज तक रहता है हमारा बच्चों का गणित में क्या रखा, लैंग्वेज में क्या मार्क रखा, मगर अभी ये जो प्रोग्रेस कार्ड आएगा तो उनका सेल्फ अपने को कैसे मापा ये भी रहेगा। अपने फ्रेंड्स भी उनको कैसे मार्क दिया डिफरेंट एरियाज में, स्वास्थ्य में, और ये जो हमारा विषय का ज्ञान में कितना मार्क मिला, ये सब दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, 360 डिग्री असेसमेंट एंड करिकुलम लोड हैज बीन रिड्यूस्ड। जो किताब का जो पाठ है इसको भी कम कर दिया गया। तो क्या क्यों कम कर दिया? आप सब बोलेंगे कि ये बहुत डिबेट चल रहा है देश में, बट इट हैज सम रैशनल, इट हैज सम रीजन why textbook knowledge, the volume of textbook has been reduced. It is because the child will learn from his environment. ये उनका परिवेश में बहुत सारे चीज है जो कि from which the child can learn, एक्सप्लोर करेगा, आविष्कार करेगा। उनका परिवेश में क्या है? हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट से, आर्टिसन से, उनका भी नॉलेज है। आज तक हम उनको गुरुत्व नहीं दिए हैं। जो आर्टिसन से, कोई लोहार है, कोई जो गाने वाला है, कोई बजाने वाला है, कोई नाचने वाला है, हम आज तक उनका ज्ञान को हम विद्यालय में और स्कूल में यूज नहीं किए। तो अभी वो भी स्कूल में वो ज्ञान आएगा। इसलिए ये जो किताब वाला जो ज्ञान है इसको कम कर दिया गया। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। कुछ क्रिटिक तो बोलते हैं, नॉर्मली ये होता है हमारा मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, बट दिस इज द रैशनल एंड ऑल एजुकेशनिस्ट्स दे आर रेस्पेक्टिंग दिस डिसीजन एंड एज आई सेड एन इंडिया सेंट्रल एजुकेशन। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो ट्रेडिशन है, ये एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। इसको एक शब्द यूज किया गया है, लोक विद्या। लोक विद्या मीन्स लोकल नॉलेज। मैं जैसे बोल रहा था, आर्टिस्ट से, आर्टिसन से, गाने वाला है, बजाने वाला है, इसको बोलते हैं लोक विद्या। इसको भी यूज किया जाएगा। एंड और एक है जो 21st सेंचुरी स्किल्स। हमारा जब 21st सेंचुरी को आए तो कुछ स्किल का जरूरत पड़ा। हम पहले ये नहीं सोचे थे कि ये जो डिजिटल लिटरेसी, जो कंप्यूटर ज्ञान, इंटरनेट ज्ञान, ऑनलाइन, ये सब कुछ काम में आएगा। और हम कुछ पुराने लोग ऐसे सोचते थे कि हम जैसे लोग सोचते थे कि ये क्या 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 जरूरत है, किताब पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में बैठो। बट नाउ द सिचुएशन हैज कंपेल्ड अस एंड दिस इज वन ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स, ये भी शिक्षा में होगा। एंड अनदर इज इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये समानता, शिक्षा में समानता, सभी को सुযোগ दिया जाएगा, तभी तो हमारा हम वो बोल पाएंगे एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा कैसे होगा? जब सभी को समान सुযোগ दिया जाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग एवरीबडी, एवरीबडी, मार्जिनलाइज सेक्शन, गरीब है, जो दिव्यांगजन है, सभी को शिक्षा मिलेगा। तो ताकि हम अटेंड करेंगे 100% प्लस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब विद्यालय में जितना बच्चे हैं उतना वयस्क का
सब हम बोलते हैं कि 6 से 17 साल तक जो स्कूल शिक्षा है सभी विद्यालय को जाएंगे। दैट इज कॉल्ड 100% GER। एंड हमारे देश में 3.22 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है। मतलब ये जो 6 साल से 17 साल में 3.22 करोड़, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, कोई कंट्री का भी पॉपुलेशन इतना नहीं होगा जो हमारा विद्यालय के बाहर में जो बच्चे हैं। तो ये बच्चे कौन होते हैं? जो नाम नहीं लिखाए हैं और कुछ नाम लिखाए मगर स्कूल को छोड़ के चले गए। तो ये सब बच्चों को टू ब्रिंग बैक टू द स्कूल, दैट इज अनदर चेंज। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्स, पहले जो था हमारा साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था। ये साइंस का सब्जेक्ट साइंस बच्चा लेगा, कॉमर्स का सब्जेक्ट कॉमर्स बच्चा लेगा, मगर अभी ये नहीं है। अभी एक बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ डांस भी ले सकता है और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। तो ये एक जो बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ कोर्स ये भी दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन फॉर ऑल, आपको ये खुशी होगा कि वोकेशनल एजुकेशन में हमारा देश बहुत पीछे था। जब जैसे कि हमारा देखते हैं कि कोरिया से आते हैं, उनका जब 12 5 ईयर प्लान पीरियड में 17 से 24 वर्ष बच्चों का जो युवाओं का वोकेशनल एजुकेशन 96% था। अब कनाडा में 52% था, हमारा 5% था। We had only 5% children in the age group of 7 to 24 having one vocational education. But now it is said that at least 50% of the students will be having vocational education. And vocational education will start from class 6 to 12. And it is being experimented in our DM school as you know, 6 to 12 vocational education. Similarly, कोचिंग कल्चर को कम करना है। कोचिंग सारा देश को, जब किताब का पाठ कम हो जाएगा कोचिंग कल्चर भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अभी कोचिंग तो क्यों जाते हैं? जो किताब में जो पढ़ाई है उसको रटाते हैं जो कोचिंग वाले, मगर ये जब किताब का पाठ कम हो जाएगा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आएगा परीक्षा में, ये जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा। और बोलते हैं कि परसेप्चुअल टू कंसेप्चुअल टू प्रेस्क्रिप्टिव टू आवर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। परसेप्चुअल मतलब पहले बच्चा देख के ऑब्जर्व करके सीखेगा, इसके बाद उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, इसके बाद कुछ विषय दिया जाएगा जब वो जाएगा अपर क्लास को, फिर उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज सीखेगा। तो ये हिसाब से हमारा किताब बनेगा और हमारा परीक्षा भी वही होगा। हम बोलते हैं अनदर थिंग इंटीग्रेटेड पेडागोजी। इंटीग्रेटेड पेडागोजी मतलब हमारा आर्ट को, जो कला, हमारा जो डांस है, हमारा थिएटर है, हमारा पेंटिंग है, ड्राइंग है, इसको भी पढ़ाने का माध्यम में यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? हमारा अभी जो इच्छावर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम 633 लोगों को हम ये इसमें ट्रेनिंग दिए हैं। एजुकेशन जो पढ़ाना एंजॉयबल होगा, फन होगा, बच्चे एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। तो ये कला को विज्ञान में सीखने में यूज होगा, लैंग्वेज सीखने में यूज होगा, गणित सीखने में भी यूज होगा। सिमिलरली आपका स्टोरी टेलिंग भी होगा। स्पोर्ट्स को हमारा जो बरुआ डॉक्टर बरुआ, ये डॉक्टर बरुआ अभी तो PhD उनका हो गया, तो सभी अभी कभी मिस्टर बरुआ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर बरुआ जो करते हैं हम बोलते हैं वो खाली खेल वाला, ये फुटबॉल खिलाता है, ये करता है। नाउ इट विल कम एज ए पेडागोजी, शिक्षादान में कार्य में भी ये आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देन ICT इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ICT मतलब ये जो हमारा आप जानते हैं कि
इंटरनेट, कंप्यूटर, ये माध्यम में शिक्षा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इंटीग्रेटेड पेडागोजी। सिमिलरली मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, जब हायर एजुकेशन को आप जाएंगे, पहले आप 2 साल कंप्लीट किया ग्रेजुएशन 3 साल होता है। जब 2 साल कंप्लीट किया आपको विदा किया जाता था, तो आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं था। अभी 4 साल का हो जाएगा ग्रेजुएशन पढ़ाई। 4 साल में जब कोई 1 साल पढ़ के बोलेगा मैं छोड़ जाऊंगा, उनको एक सर्टिफिकेट, कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब कोई 2 साल कंप्लीट करके छोड़ेगा, इसको एक एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। जब कोई 3 साल कंप्लीट करके जाएगा, इसको बीए और बीएससी सर्टिफिकेट मिलेगा। जब कोई 4 साल पढ़ेगा, इसको बीए और बीएससी विथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। तो आपका जो 2 साल पढ़ाने के बाद, अभी 3 साल पढ़ने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट ओनली कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता था। अभी आप 1 साल पढ़ने के बाद एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, 2 साल पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिल गया, 1 साल के बाद आप भी एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 2 साल के बाद नौकरी मिल गया, सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल के बाद नौकरी मिलेगा, आपको बीए सर्टिफिकेट मिलेगा। It is not necessarily that you will complete all the 4 years of graduation education. This is a major transformational change in the system of education. Then semester system भी होगा स्कूल में। और जो केजीबी था बालिकाओं को विद्यालय के लिए, इसको 12 साल तक बढ़ाया दिया गया। वो 8वीं साल तक था। जो ट्राइबल एरिया में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था, उसको 12 साल तक बढ़ाया दिया गया। और मदर टंग को, मातृभाषा को शिक्षादान इसमें का माध्यम से ग्रहण किया गया, कम से कम 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक। तो इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट में कुछ फर्क नहीं होगा आगे। जैसे ना गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली अंग्रेजी मीडियम देते थे, अभी वो गांव तक चला गया अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इंटीरियर विलेज तक चला गया। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, और प्राइवेट स्कूल मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल। मगर अभी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूल मातृभाषा में कम से कम 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक पढ़ाई करेंगे। इसके बाद भी क्लास 8 तक पढ़ाई भी कर सकते हैं और आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे और एक बड़ा जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एंट्री किया। हमारा जो वो तो पर्सनली पूरा शिक्षा नीति को रिव्यू करते थे, वो बोले कि 10 डेज बैगलेस थे। बच्चा महीने में 10 दिन बैग लेके नहीं जाएगा, बिना स्कूल बिना किताब में जाएगा। तो किताब में जाके खाली बैठेगा नहीं, वो जाके जो लोक विद्या दिन मुझे बोला था, उनके इंटर्नशिप करेगा। आप जैसे हमारा बीएड स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं, वो स्कूल बच्चे भी इंटर्नशिप करेंगे। किसके साथ? कलाकार के साथ। कोई बुनाई करता है जो कपड़ा गांव में, उनके साथ करेंगे। कोई अच्छा नाचने वाला है, उनके साथ जाके इंटर्नशिप करेंगे। इसलिए 10 दिन को रखा गया बैगलेस डे। ये और ये जैसे हमारा और एक खुशी का विषय है कि जो कि हम लगभग 40-50 साल से हम यूज कर पढ़ाई इधर कर आ रहे हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को मिनिमम क्वालिफिकेशन किया जाएगा आगे। तो हमारा जो एनसीईआरटी का मॉडल 4 साल वाला शिक्षा इसको यूज किया जाएगा। इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन पकड़ा जाएगा फ्रॉम 2030। बिकॉज अभी तो बहुत सारे है 2 साल वाला बीएड कॉलेज भी है, ये सबको बंद कर दिया जाएगा और 4 साल वालों को मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया जाएगा। और आजकल बहुत सारे छोटे छोटे जो स्कूल है, उनको मिला के एक क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, जिसमें टीचर विद्यालय के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगा, टीचर अपॉइंटमेंट होगा स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए। क्यों? बिकॉज जब एक स्कूल में 25 बच्चे हैं, मैं इसके ऊपर एक अध्ययन किया हूँ स्मॉल स्कूल के ऊपर। मैं देखा कि एक स्कूल में 25 बच्चे हैं,
I remember that school and having 6 teachers. It is not possible. And in our country there are many single teacher schools. एक टीचर वाले स्कूल बहुत है और ये स्कूल में कला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा ये सब देने के लिए सेपरेट टीचर नहीं हो पाएंगे, तो 25 टीचर कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स में टीचर अपॉइंटमेंट होंगे और ये जितने स्कूल है जो 20-25 स्कूल है सब में जा के पढ़ाएंगे ये तो। और जैसे हमारा नाक एक्रेडिटेशन करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हमारा बीएड कॉलेजेस को और कॉलेजेस को, ऐसे स्कूल का भी एक्रेडिटेशन होगा जैसे नाक करता है, इसलिए भी व्यवस्था किया गया। और लास्ट में मैं बोलूंगा जे आज एक कोविड सिचुएशन में और ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, मैं क्यों बोला कि आप सब लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये अवसर में जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया, हमारे तो जो फैकल्टी मेंबर्स है हम डिस्कशन कर चुके हैं और बट जो सब लोग इधर फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे दूसरा कर्मचारी है, उनको भी पता होना चाहिए कि कभी कभी उनको भी लोग पूछ सकते हैं आप रीजनल में काम किया, क्या नया एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ? नॉन टीचिंग वो नहीं सोचेंगे। रीजनल कॉलेज एक एनसीईआरटी का है तो आप क्या जानते हैं? आप बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ। तो आप सबको भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे भी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमारा प्रोफेसर रमेश बाबू को बोलेंगे जो सभी को भी एक ओरिएंट करेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी ओरिएंट करेंगे। तो हमारा ये जो कोविड सिचुएशन में हमारा एनसीईआरटी का रोल के बारे में मैं बताता हूँ। जो चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं, एनआई में हो आरआई में हो, क्या क्या काम कर रहे हैं? ये ई कंटेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हमारा स्टूडियो है इधर ई कंटेंट डेवलप होता है, सब वीडियो बनाते हैं, पढ़ाई के बारे में वीडियो बनाते हैं। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उनको टीवी में दिखाया जाता है। एक स्वयं प्रभा एक चैनल जो है टीवी चैनल, इसमें हमारा सब टीचर पढ़ाते हैं। कोई भी आप देखे होंगे कि अश्विनी गर्ग पढ़ाते हैं, रश्मि शर्मा मैडम पढ़ाते हैं, रश्मि सिंघाई मैडम पढ़ाते हैं, सारिका साजू मैडम पढ़ाते हैं। सब उनका पढ़ाई सारा देश में बच्चे सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे चित्रा मैडम भी आगे खड़े हैं, वो भी पढ़ाते हैं, हमारा शिवालिका मैडम भी पढ़ाते हैं। सब ये जो टीवी चैनल में जो पढ़ाते हैं वो सारा देश देखता है, सारा देश के लिए हम काम करते हैं। ये कोविड सिचुएशन हम भी वॉरियर से कम नहीं है। एनसीईआरटी जो काम करता है, इसका मतलब नहीं है कि खाली जो टीचर जो करते हैं वो काम है। आप जब नॉन टीचिंग स्टाफ वो काम करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो तो काम कर पाएंगे। नहीं तो स्टूडियो कहाँ, उनका घर जाता है तो कहाँ से आएगा? वो दुकान में जाके नहीं करते हैं। इधर आप लोग आते हैं, आप फैसिलिटेट कराते हैं, फाइल चलाते हैं, ये सब काम होता है। इसलिए एंटायर फैकल्टी, एंटायर स्टाफ ऑफ RI and NCERT are engaged in this, and also we have brought many guidelines. ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगा? जैसे कि आप अभी जानते हैं सभी लोग कि प्राइमरी बच्चों को 30 मिनट का ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाएगा और अपर प्राइमरी बच्चों को 2 सेशन का 30-40 मिनट का 2 सेशन मैक्सिमम दिया जाएगा। और जैसे हायर सेकेंडरी बच्चों को हायर सेकेंडरी बच्चों को 4 सेशन दिया जाएगा, 40 मिनट की सेशन। ये जो किसी ने बनाया है, ये आप जो खबर में पढ़ते हैं, ये किसी ने बनाया है? ये एनसीईआरटी ने बनाया है। तो ये कोविड पीरियड में ही बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए सभी को जो एनसीईआरटी ये कोविड सिचुएशन में कैसे काम किया है। ऐसे अभी हम भी विचार कर रहे हैं, टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम आ गया, अभी ओरिएंटेशन होगा, ये कोविड पीरियड में आया। अभी टीचर्स के लिए भी लर्निंग आउटकम आएगा। टीचर का क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या कौशल होना चाहिए, क्या क्या दक्षता होना चाहिए, ये भी आने वाला है। और आप जब देखेंगे दो पॉलिसी को कंपेयर करेंगे, 86 में जो 34 साल पहले जो पॉलिसी था और आज का पॉलिसी जब कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे, मैं पढ़ा हूँ दोनों पॉलिसी को, बहुत नजर में पढ़ा हूँ। मैं देखा कि उसमें एनसीईआरटी का नाम भी नहीं था।
एक ही शब्द एनसीईआरटी का नाम नहीं था 86 पॉलिसी में। ये पॉलिसी में सब करेगा एनसीईआरटी, जो ईसीसी का जो प्राक प्राथमिक शिक्षा का गाइडलाइन बनाएगा, इसका करिकुलम बनाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाएगा। हमको जो एनसीटी कुछ कभी कभी तंग करता है, अभी हमारा रोल आ गया, मुझे दो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को हम बंद करना पड़ा अभी, क्योंकि एनसीटी उनको टीचर बनाने के लिए सुझाव नहीं दिया। तो मैं एक 15 दिन 10 दिन प्रयास होगा आएगा जे आपका इधर ये हुआ है, आप ये कमिटी हम किए हैं, आप मेंबर होंगे, एनसीटी एक हाई पावर कमिटी बना है। मैं बोला ठीक है। तो ये मतलब ये है कि वो एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंट देते हैं। हमारा डिसीजन अब आगे दिन में टीचर एजुकेशन क्या होगा एनसीईआरटी निर्धारण करेगा, ये भी होगा। सो ऐसे भी और बड़ा उपलब्धि हमारा है कि ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ये समय में किताब शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कोविड सिचुएशन में किताब में क्यों किताब में जो पाठ है उसको पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, और अभी जो हम एक कैलेंडर बनाए हैं स्कूल के लिए, स्कूल का प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, फिर हमारे टीचर सब बनाए सारा देश में। वो जो कैलेंडर, वो जो पढ़ाने का जो पाठ्यक्रम बनाए हैं, ये पेरेंट्स भी इसमें जुड़ेंगे। तो अभी टीचर नहीं है, टीचर का जगह कौन लेगा, घर में पेरेंट्स लेगा। तो ये जो सब चीज है, हमारा रोल ऑफ एनसीईआरटी व एनसीईआरटी का जो भागीदारी हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी लाने में बहुत लाभदायक है देश के लिए, और हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसमें एनसीईआरटी में जो लोग काम करते हैं, ये सभी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है। जो सफाई करते हैं, आप तो इसलिए इधर बैठ के काम कर पाए, वो अच्छी तरह सफाई के, आपका टॉयलेट हो या जो कैंपस हो, सफाई के, और वो आप इसलिए काम कर पा रहे हो, वो हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ वो आए, आप इसलिए शांति में काम किए, ताकि क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आके हमको सुरक्षा दिए दिन रात। उनके लिए क्या कोविड नहीं है, उनके लिए क्या कोविड बोलेगा नहीं, ये तो डॉक्टर है उनको छोड़ देगा, या सिक्योरिटी होगा उनको छोड़ देगा। तो इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज से ये दिन में मैं फिर अंत में सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना और जय हिंद। Thank you very much, sir. Now may I request the principal sir to start the process of distributing marks with some of the staff sitting up front. काय से बंद? May I request sir to give marks to Professor Kakaria. ये जहाँ लेके जाओगे ना लाइव चलेगा, ये लाइव चल रहा है। Dean of Instructions. Sir will initiate the process.